Good morning, children. I believe that you all are well and fine. Okay, now in standard 7th, today we are going to start our worksheet video chapters of chapter number 10, that was respiration in organisms. Okay, so now let's have a see what has been given in the worksheet. Question number 1, that was fill in the blanks. Let's have a see it. Now see, fill in the blanks. Question number 1, the process of breaking down of the food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. बच्चों देखो, why the name has been given cellular? Why this name has been given cellular? Because this whatever the food which we are eating, okay, from that food ultimately we are getting the glucose, and that glucose will ultimately go in the cells for the further process. So ultimately all the energy which we are getting, these energies we are getting from the cell because of the decomposition of glucose. Okay, the glucose will be utilized to produce energy in our body in the cell by the process of respiration. That's why the name has been given to it, that was cellular respiration. Okay bachcho. Question number 2, the taking in of the air rich in oxygen into the body is called inhalation, not exhalation. सी देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर टिक मार्क भी किया है और यहाँ पर आंसर्स को लिखे भी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हर क्वेश्चन के आगे आपको हमने दो ऑप्शंस दिए हैं. नाउ बिटवीन दीज टू ऑप्शंस यू हैव टू चूज विच शुड कम हियर, विच वन शुड कम इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने इनहेलेशन रखा हुआ है, क्योंकि इनहेलेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन रिच एयर को हमारी बॉडी में लेना, ठीक है। वो एयर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, डैट विल बी कॉल्ड एज अ इनहेलेशन. उसको अपने लंग्स में प्रोवाइड करना, डैट विल बी कॉल्ड एज अ इनहेलेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द ओपनिंग इन द कॉकरोच बॉडी थ्रू विच इट टेक्स इन एयर इन इट्स बॉडी फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड spiracles. As we all know that maximum insects of the phylum Arthropoda, चलो अभी तो आप एक स्टैंडर्ड 7th में हो, अभी आप लोगों ने फाइलम्स नहीं पढ़े, लेकिन कॉकरोच जिस फाइलम को बिलोंग करता है, एनिमल्स की जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसके जैसे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनके बॉडी में लंग्स नहीं होता, मतलब जिनके पास नॉस्ट्रल्स नहीं है. ओके, सो दे डोंट हैव नॉस्ट्रल ओपनिंग for the intake and the outtake of oxygen, that was the gases, but they are having so many holes at the side of the body, which these holes will ultimately work as a nostril. Means from these holes the cockroach will absorb, it will intake air, that was oxygen rich air from the atmosphere. And since as soon as this air will go inside the body, ultimately the gaseous exchange will done. As a result there will be a formation of energy in the body. तो देखो बच्चों, अल्टीमेटली में हमारे अर्थ पे रहने वाले हर एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सभी का एम क्या है? उन सब का एम है अपनी बॉडी में एनर्जी को बनाना, ठीक, टू मेक एनर्जी इन देयर बॉडी. और उनकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन कब होगा? तभी होगा जब वो ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे, और ये एयर, इस एयर में जो ऑक्सीजन है वो उस एनिमल के सेल्स तक जाएगा, ठीक है ना. तो ये काम करने के लिए गॉड ने कॉकरोच को क्या दिया है? स्पाइरेकल्स दिए हैं, नॉस्ट्रल्स नहीं दिए, ठीक है ना. तो ओपनिंग इन द कॉकरोच बॉडी थ्रू विच इट टेक्स इन एयर इन इट्स बॉडी फॉर respiration are called spiracles. So this will be the answer, that was the spiracles. Now see question number 4, the large muscular sheet which forms the floor of the chest cavity is called diaphragm. अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो, if you are remembered, हमने जब चैप्टर नंबर that was, देखो बच्चों यहाँ पर आप लोग ये चेंज कर लो, दिस इज़ नॉट द चैप्टर नंबर 10, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 9. ओके, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स.
अभी हमारे पास वर्कशीट में जितने चैप्टर्स अवेलेबल हैं उतनी वर्कशीट्स मैं आपको भेज रहा हूँ, और जिनकी वर्कशीट्स आपके पास नहीं गई हैं, जिन चैप्टर्स की वर्कशीट आपके पास नहीं है, नीड नॉट टू बी वरी, ओके, वी विल कवर इन द टेक्स्ट बुक ओनली, ओके। तो देखो, अगर आप लोगों को डायग्राम याद हो, और अगर याद नहीं है तो देन प्लीज़ रेफर योर टेक्स्ट बुक। उसमें आप देखना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम में आप दोनों लंग्स को ऑब्जर्व करना। दोनों लंग्स के ठीक नीचे एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज अ डायफ्राम। डायफ्राम विल अल्टीमेटली हेल्प टू बाइफरकेट बिटवीन द चेस्ट कैविटी एंड द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को बाइफरकेट करने वाला कौन होता है? डायफ्राम। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट, नॉट रनिंग रेट। मतलब एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीथ करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीथ? टू इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड टू आउटटेक ऑफ CO2 rich air, that was inhalation of oxygen rich air and exhalation of carbon dioxide rich air, okay, ओके नाउ ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए, सेकेंड नंबर, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रिप्लेसिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब देखो बच्चों, लंग्स आर लोकेटेड इन द बक्कल कैविटी। अरे भाई, बक्कल कैविटी, बक्कल का मतलब क्या होता है? दिस इज द कैविटी विच वी आर फाउंडिंग इन आवर माउथ। जब आप अपना माउथ ओपन करते हो तो वहाँ पर जो आपको कैविटी मिलती है, दैट इज़ नोन एज द बक्कल कैविटी, ओके। तो हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे बक्कल कैविटी में नहीं होते हैं, हमारे लंग्स हमारे माउथ में नहीं हैं, ठीक है ना। दैट वाज द चेस्ट कैविटी। तो लंग्स आर लोकेटेड इन द नॉट बक्कल, तो बक्कल को हटा करके आप क्या लिखोगे? चेस्ट। तो आपको यहाँ पर हटाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जगह दी हुई है लिखने के लिए। द अल्टीमेट एम इज़ डैट कि आप लोग चीज़ों के बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते हो। डैट्स ओनली वी वांट टू चेक इट आउट, ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? चेस्ट। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है। नंबर सेकेंड देखिए, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड इज़ ब्रोकन। The type of respiration in which the food is broken down without the use of oxygen is called aerobic respiration. बिल्कुल नहीं, it is 100% wrong. This is not aerobic. This is known as anaerobic. Okay. See, देखो बच्चों, आप लोगों को मैंने ये बात बताई भी थी चैप्टर के लास्ट में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन will always takes place in the presence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर ऑक्सीजन है तो ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे लिए कंडीशन क्या दी हुई है? द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड इज़ ब्रोकन डाउन विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहे हो, अगर आपने ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया है, देन द रेस्पिरेशन विल बी कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक की जगह पे क्या आ जाएगा? एनाएरोबिक। थर्ड नंबर देखिए, तो ह्यूमंस आर एनारोब्स। ह्यूमंस एनारोब्स हैं। क्या ये आंसर सही है? नहीं, 100% रॉन्ग आंसर। ह्यूमंस मतलब हम लोग, एनारोब्स मीन्स वी आर लिविंग विदाउट ऑक्सीजन। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू लिव आवर लाइफ विदाउट ऑक्सीजन? नो। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ईस्ट। ईस्ट आर एनारोब्स, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट जो होते हैं वो एनारोब्स होते हैं। वाई? बिकॉज ईस्ट बिलोंग्स टू द मशरूम। ईस्ट मशरूम को, सॉरी, ये फंगस को बिलोंग करता है। ईस्ट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फंगस, ठीक है, जिसको सर्वाइव करने के लिए हर समय ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फोर्थ नंबर देखो बच्चों, ईस्ट रेस्पायर एनारोबिकली एंड यील्ड वाटर। ईस्ट को आपने एनारोबिकली रेस्पिरेशन करवाया, मतलब ईस्ट के थ्रू आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन को करवाया एंड यील्ड वाटर। तो आपने क्यों करवाया, उसके बदले में आपको क्या मिला? द आंसर इज अल्कोहल। द आंसर इज अल्कोहल। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि अल्कोहल जो आप मार्केट में देखते हो
वो अल्कोहल को बनाने के लिए आप फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हो। द प्रोसेस बाय विच वी आर मेकिंग द अल्कोहल दैट विल बी कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस को जब कभी भी आप करते हो तो वहाँ पर आप बार्ले, इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्रॉप, बार्ले के ऊपर ईस्ट का एनएरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हो। मतलब ईस्ट को आप बार्ले के ऊपर ग्रो करवाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि ईस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल बनेगा। तो वहीं से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और उस अल्कोहल को आप यूज़ करते हो टू मेक द लिक्वर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोग समझ जाओ कि ईस्ट रेस्पायर एनएरोबिकली एंड यील्ड वाटर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपको इसको रिप्लेस करना होगा, इस वाटर को। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अल्कोहल। देखो यहाँ पे लाइन खींची हुई है, दिस इज नोन एज, यू हैव टू रिप्लेस इट। ओके, सो द आंसर विल बी अल्कोहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वी फील स्लीपी आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। रात में या दोपहर में या सुबह के टाइम जब कभी भी आप सोते हो तब आपकी बॉडी को मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बच्चों, आपको ये बात जाननी होगी कि आपके बॉडी का ब्लड का जो रेट है, मतलब आपकी बॉडी का जो हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट कब बढ़ता है और कब घटता है, डैट वॉज द ब्रीदिंग रेट। देखो, आपके बॉडी की हार्ट बीट और आपके बॉडी का ब्रीदिंग रेट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपके बॉडी में जब कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो एनर्जी का फुलफिलमेंट कहाँ से होगा, आपकी बॉडी में जो सेल है वहाँ से होगा। तो आपकी बॉडी में जो सेल है, उस सेल से क्या बनेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सप्लाई करेगा, फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों मिल करके अल्टीमेटली में आपकी बॉडी में ब्रीदिंग रेट को डिसाइड करते हैं कि ब्रीदिंग रेट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप कम काम कर रहे हो, आपकी बॉडी में एनर्जी की डिमांड कम है, तो ब्रीदिंग रेट कम होगा। क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी की डिमांड अगर कम है तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में जाएगा उतना ज़्यादा एनर्जी बनेगा। लेकिन जब आप सोते हो तो उस टाइम पर एनर्जी की डिमांड मिनिमम होती है, तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आपका ब्रीदिंग रेट कम है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंक्रीजेस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्लोज, स्लो डाउन। ठीक है ना। तो व्हेन वी फील ड्रॉसी, ड्रॉसी का मतलब क्या होता है, स्लीपी, आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। नो, द आंसर विल बी स्लो डाउन। ओके, प्लीज टर्न ओवर द पेज, ऑल ऑफ यू। नाउ सी हियर, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर, ग्लूकोज, ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन। अब देखो, ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा डेट वॉज द सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी। ठीक है। सेकेंड नंबर, ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज टूट तो रहा है हमारे बॉडी में लेकिन विदाउट ऑक्सीजन, डैट वॉज, तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे बॉडी का ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना अगर टूट रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको टिक मार्क किया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ योर सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखो, ग्लूकोज इन द मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, आपकी बॉडी के मसल्स में जो ग्लूकोज है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। देखो बच्चों, जब कभी भी आप बहुत तेज़ दौड़ते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, एट दैट टाइम वी फील फटीक, वी फील लेज़ी, वी फील टायर्ड। वाई, बिकॉज ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इसका क्या मतलब है, क्या हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, होता है। लेकिन आपके बॉडी की एनर्जी की डिमांड
इतना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आप फिज़िकल वर्क ज़्यादा कर रहे हो, आप ज़्यादा दौड़ रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, आपके मसल्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपने जब खाना खाया था, उस खाने के साथ आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ गया और वो ग्लूकोज़ आपकी बॉडी में स्टोर हो गया। ठीक, कहाँ पे स्टोर होगा? मसल्स के नीचे, सॉरी ये मसल्स के अंदर, स्किन के नीचे, मसल्स के अंदर। ठीक है ना? तो ज़रूरत पड़ने पर वो ग्लूकोज़ का हम यूज़ करेंगे, वो ग्लूकोज़ आपकी बॉडी के सेल्स में जाएगा और सेल्स में जाने के बाद उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन जब आप बहुत तेज़ दौड़ते हो या आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम कर रहे हो, फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के मसल्स का ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की डिमांड करता है अपने आप को ब्रेक करने के लिए। लेकिन आपके नॉस्ट्रल्स और आपके लंग्स डिमांड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को फुलफ़िल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम फील करते हैं टायर्ड। We feel tired because of the accumulation of lactic acid in our muscles, and the lactic acid will be formed as a result of anaerobic respiration in the muscles. ठीक है, तो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा डेट विल बी द ई नंबर। फोर्थ नंबर देखो, इनहेल्ड एयर, जिस एयर को आप अंदर लेते हो उसमें क्या होता है 21% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जो एयर आप अपने बॉडी से बाहर निकालते हो डेट वाज द एक्सहेल्ड एयर, उसमें क्या होगा 16.4%। तो हर समय नियर अबाउट टू बी 3% ऑफ एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। तो 3 से 4% के बीच में वेरी करता है। ठीक है ना? तो 3 से 4% ऑफ ऑक्सीजन आप हर ब्रीथ में हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हो। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने सारे आंसर्स अलग से लिख दिए हैं कि फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, कंप्लीट द टेबल। ऑल ऑफ यू सी हेयर, हाउ डू दे ब्रीथ, ये ब्रीथ कैसे करते हैं? अर्थवॉर्म कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ स्किन। कॉकरोच कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ स्पाइरिकल्स। फ्रॉग कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ लंग्स एंड स्किन, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। ओके, दे कैन लिव ऑन द वाटर एज वेल एज इन द ऑन द लैंड। तो जब ये वाटर में होगा तब ये लंग्स स्किन का यूज़ करेगा, सॉरी लंग्स का यूज़ करेगा, लेकिन जब ये उस पे होगा अर्थ पे तब वो स्किन का यूज़ करेगा। लंग्स और स्किन का दोनों का यूज़ करता है वो। ओके, लीव्स, डेट वॉज द स्टोमेटा। भाई लीव्स ब्रीथ कैसे करेंगे? हालांकि लीव्स में दो काम होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है और ब्रीदिंग भी होती है, और सॉरी रेस्पिरेशन भी होता है। लेकिन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है। दिन के वक्त में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं, रात के वक्त में O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। और ये सारे काम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। फिफ्थ नंबर, फिश। फिश का ब्रीदिंग कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ह्यूमंस, इनमें ब्रीदिंग कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स, दैट वाज द लंग्स। तो अल्टीमेटली में नॉस्ट्रल्स से आप ऑक्सीजन रिच एयर को अपने बॉडी में डालते हो और ये एयर अल्टीमेटली में आपके बॉडी के लंग्स में पहुंचती है। वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, क्योंकि आपके बॉडी का इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स में आता है अपने आप को प्योर करने के लिए। इस इम्प्योर ब्लड को हमारा हार्ट पंप करता है कि जाओ तुम प्योर होके आओ। ठीक है ना? तो हमारे बॉडी का लंग्स, नॉस्ट्रल्स, हार्ट, ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब मिल करके हमारे बॉडी में एनर्जी को लगातार बना के रखते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा उतना ज़्यादा हम अपने आप को एक्टिव मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो अभी आप लोगों ने किया है, इसके लिए आपको ये एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ था। हालांकि मैंने इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना इसको। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आप लोगों की यहीं पे ख़त्म हो रही है, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है। ओके, मैं बिलीव करता हूँ कि ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है आप लोगों को। ठीक है, एक बार और, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके,
हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।